नमस्ते दोस्तों। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर गिरीश जी शाह। ही इज द फाउंडर and chairperson of international NGO Samast Mahajan, a trust established in 2002 dedicated to social services. Its head office is in Mumbai and branch offices are in Ahmedabad, Vadodara, Surat, Rajkot, and representatives are in several cities and towns. It turned into an international NGO working in India and abroad since 2002. Samas Mahajan support for education and healthcare facilities to the poor people, victims of the natural calamities in terms of financial assistance to the families. Some special occasion organizations supply all essential materials and support them during natural humanitarian duties during natural calamities such as earthquakes, floods, tsunamis, fire, or any outbreaks of the disease and so on. Recognizing talent and personalities whose life is driven by the maxim live and let live. Awards and honor. He is a recipient of Jivdaya Ratna for Human Services, Indira Priyadarshini Raksha Mitra Award for Outstanding Contribution in the Field of Environment Protection, Acharya Chanakya Award 2020. The Governor of Maharashtra, Shri Bhagat Singh Koshyari, has conferred Acharya Chanakya Award 2020 for Outstanding Contribution in the Field of Rural Development, Water Conservation, Animal Welfare, and Environmental Protection. He is a member of the Animal Welfare Board of India, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Government of India. The Government of India also made him responsible for policy formulation on animal welfare and prevention of cruelty to animals to include in its executive committee. Primarily involved in diamond businesses since 1985 to till date, and the business name Dizzy Exports and Rishabh James network are spread in India and abroad, covering many countries in the world like Japan, USA, Hong Kong, Bangkok, Dubai, Poland, and Antwerp. The DC Export is trading polished diamonds for export purpose to various countries. Professional membership is given from various organizations of the national and international rapid like the GEMS, Jewelry Export Promotion Council, and the Pran Sukhlal, Mafatlal Hindu Swimming Bath and Boat Club Trust. Welcome Grishji and Namaste viewers. सर बताइए आपकी जर्नी डायमंड एक्सपोर्टर से लेके आप समस्त महाजन तक कैसे पहुंचे? आपको क्यों लगा कि यू वांट टू वर्क फॉर एनिमल वेलफेयर? जी नमस्ते सभी दर्शकों को, प्रणाम। समस्त महाजन की जर्नी कुछ ऐसे शुरू हुई 1982 में। जब मैंने 10th किया तो ऑफ कोर्स 10वीं के बाद 2-3 महीने की छुट्टी भी होती है, घूमने जाते हैं या तो उस समय में मेरे गुरुदेव उपन्यास चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब थे अंतरिक्ष जी में। मैं अंतरिक्ष जी गया उनके पास। ऐसा कोई लंबा परिचय नहीं था, पहले बारी मिलना हुआ, एक शिविर में मिला था तो तब आशीर्वाद मिला था। मैंने कहा चलो इनके पास थोड़ा रहते हैं, कुछ धर्म का भी सीखते हैं। तो वहाँ से वो परिचय और उम्र होगी 18 साल। तो लाइफ का वो फर्स्ट टर्निंग था कि कोई गुरु महाराज के नज़दीक में 1 महीने रहना हुआ। उसके बाद वो परिचय बढ़ते बढ़ते फिर 84 में मैं बेलगांव से गुजरात में शिफ्ट हुआ डायमंड का बिजनेस सीखने। वैसे पेरेंटियल बिजनेस गुड और शुगर का है। तो और फिर डायमंड में दुनिया घूमना हुआ, बिजनेस किया। 96 में पहली बार ऐसा हुआ कि इधर अहमदाबाद में गुरुदेव थे और मैं दर्शन वंदन करने आया था। नॉर्मली साल में एक बार, महीने में एक बार आना जाना लगता ही था, लेकिन दिवाली के बाद का समय था तो मैं गुरुदेव को मिलने आया। और गुरुदेव को जब मिलने आया तो गुरुदेव ने ये कहा कि गिरीश तूने अभी कमा लिया है तो
तो कुछ जीव दया का काम कर। और सरप्राइज लो, मैंने कहा गुरुदेव मैं क्या बिजनेस करता हूँ, कहाँ बैठा हूँ, आपको कुछ भी मैंने कभी बताया नहीं है, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि तूने कमा लिया है तो तू जीव दया की काम कर। हालांकि बात ये सही थी कि मेरी जो फैंटेसी थी, मन में जो विचार था डायमंड में आने का, आने के बाद क्या होना चाहिए मुंबई में एक आदमी के पास, तो घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, लाड़ी तो थी, तो ये सब व्यवस्थाएं जो फैंटेसी थी, अमाउंट अपने पास होनी चाहिए। तो वाकई में जब 96 में गुरुदेव ने फर्स्ट टाइम कहा, तब मेरे पास व्हाट आई हैड ड्रीम्ड पूरा हो गया था। एंड इट वाज जस्ट एन एज ऑफ 30। तो फिर भी अब गुरुदेव ने कहा है तो मैंने कहा चलो ठीक है, जीव दया का काम करना है तो क्या करेंगे। तो जब मैं डायमंड मार्केट में हूँ, प्रसाद चैम्बर में ऑफिस है, ओपेरा हाउस में डायमंड का गढ़ कहा जाता है, गढ़्स उस समय की कॉस्टलीस्ट बिल्डिंग थी, उसमें ऑफिस है, जापानीज क्लाइंट की अच्छी भरमार थी, तो ठीक है मैंने कहा करेंगे जीव दया का काम। तो मेरे मन में उस समय पिक्चर ये था कि 16 माल का बिल्डिंग है, 16 माले से शुरू करेंगे और नीचे तक उतरेंगे तो सुबह से शाम में 10-20-25 हजार तो लोगों से ले ही लेंगे। और जीव दया का काम किसी को कहते हैं तो मोटा मोटा सबके मन में यही आता है, जीव दया मतलब क्या, 2-5 हजार लिखा दो जीव दया हो गई। उस दिन दोपहर को मैं पूज्य मुनिराज श्री हितरुचि विजय महाराज को मिलने गया, वो गांधीनगर विराजमान थे। तो वैसे वो मेरे मित्र भी थे, गुरुदेव चंद्रशेखर कुमार साहब के साथ हम जब धर्म हमें मिला तब वो भी मेरे साथ अवस्था में थे, संसारी अवस्था में, और हमारे संसारी संबंध भी थे, उनके छोटे भाई मेरे बहनोई बने फिर, तो रिलेशन भी था। तो गांधीनगर ही थे, गुरुदेव कोबा थे, वहां से गांधीनगर गया मैं और उनको मिला, तो उन्होंने भी यही कहा कि गिरीश अकाल का समय है और कुछ जीव दया का काम करने जैसा है, पशुओं को बचाने का है। तो आई सेड ओके, फ्रेंडशिप थी और वो गुरु भगवान बन गए थे तो थोड़ा सीरियसली उतना नहीं लिया था, लाइटली था। शाम को मैं संकेश्वर जा रहा था तो मांडल आता है बीच में, जम्बू विजय जी महाराज साहब मांडल में थे, तो मैं कभी मिला नहीं था, तो मेरे मन में ये विचार आया कि यहाँ तक आए हैं तो चलो जम्बू विजय महाराज साहब के पास दर्शन वंदन करते हैं। शाम का 6:30 का वक्त होगा, शाम ढल रही थी, मतलब दिवाली के बाद का समय था तो थोड़ी जल्दी ढल जाती है। मैं थोड़ा सा उजाड़ था, वहाँ के कॉटन जीन्स में थे, वो जो कॉटन की जो वो लगती है उसमें था चादर की तरह। तो दूर से ये छोटे साधु को नजदीक आए, आप गिरीश भाई हो क्या? मैंने कहा हाँ। मैं तो एकदम शॉक्ड हो गया क्योंकि हमारे साथ भी इनको किसी को परिचय में नहीं था। तो मैंने कहा सर आपको नहीं गुरुदेव मैंने पहचाना? तो बोले मैं प्रकाश विरार, मैं पुंडरीक कृष्ण विजय हूँ, अभी मैं जम्बू विजय महाराज साहब की सेवा में आया हूँ, हम लोग 84-85 में बहुत साथ में रहे हैं। आई रिकलेक्टेड, और फिर वो जम्बू विजय महाराज साहब के पास लेके गए। आगम के ज्ञाता 45 आगम जिनके जीभ पे सरस्वती है, ऐसे ज्ञानी भगवान के दर्शन हुए और बहुत मतलब एक जीवन में सुकून मिला। जम्बू विजय महाराज साहब ने वो शाम ढले यही कहा कि गिरीश भाई आप आए हो मेरे पास पहली बार, कुछ आशीर्वाद के रूप में आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप कुछ जीव दया का काम करिए। आई वाज लाइक शॉक्ड कि भाई सुबह से शाम में मेरे गुरुदेव जिसको मैं हृदय में रखता हूँ वो ये कहते हैं जीव दया का काम करूँ, जो मित्र है वो भी ये कहते हैं। विजय महाराज साहब जिनके लिए मेरे को बहुत बड़ा रिगार्ड था, मतलब एकदम वाकई में उनको मिलना चाहता था, वो भी यही कहते हैं। उनका जी गुरुदेव करेंगे। फिर संकेश्वर गया, दादा की आरती की और फिर सुबह संकेश्वर दादा की मुकुट पूजा की। उस समय दादा को मुकुट चढ़ाते हुए ये कहा कि गुरुदेव भगवान कल 3 गुरु भगवान ने मेरे को जीव दया का काम करने का कहा है। जीव दया मतलब मेरे ख्याल में कुछ है ही नहीं, मेरे ख्याल में जीव दया मतलब 2-5 हजार लिखा दो, वहां ही मेरी जीव दया समाप्त हो रही है। लेकिन जब गुरु महाराज ने भगवंतों ने कहा है और भगवान आपके चरणों में हूँ, आपको मेरे से जो अच्छा काम करवाना है मैं आपको समर्पित हूँ, आप करवाइए परमात्मा। ये कहे कि फिर बम्बई पहुंचा तो 1-2 दिन तो सोचा, मैंने कहा चलो 16 माले से शुरू करते हैं, हर ऑफिस में अपना परिचय है, लेकिन पैर चले नहीं, दर्द हुआ कि नहीं ये नहीं कर सकते, मैं किसी के पास पैसा मांगने नहीं जाऊंगा। 15-20 दिन के बाद, महीने के बाद वापस आया गुरुदेव के पास के, गुरुदेव ये जीव दया का काम नहीं, मुझे कुछ और काम दे दो। बोले क्यों? मैंने कहा इसमें तो पैसा मांगने जाना है
और पैसा मैं कैसे मांगने जाऊँ? हाँ, तो बोले नहीं, तुझे पैसा मांगने नहीं जाना है। हम्म, मैंने कहा, जिंदे का काम मतलब बिना पैसे कैसे होता है? पैसा लाओ, फिर पांजरापोल को दो, वो घास लाएगी। बोले वही तो गड़बड़ है। सारी पांजरापोल गौशाला के ट्रस्टी सुबह से शाम एक ही हिसाब करते रहते हैं। एक जीव आया गौशाला में, साल का 10,000 का मीटर शुरू हो गया। अब 100 वाला ये सोचता है कि मेरे को कैसे भी करके 10 लाख का जुगाड़ करना है साल में, और जिसके बाद 1000 पशु वो ये सोचता है कि मुझे 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है, और पूरा समय पैसा इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना, उसी में चला जाता है। कोई क्रिएटिविटी रहती ही नहीं है। राइट। उन्होंने कहा मैं तो, मेरे को भी तो वही कराने चाहते हो ना आप? बोले नहीं, तू भी किसी से पैसा नहीं मांगेगा, किसी को पुण्य करना है और सामने से देंगे तो उसका अच्छा आयोजन करेगा, और सभी गौशाला पांजरापोल भी सेल्फ सस्टेन हो, प्राणवान हो, आत्मनिर्भर हो। ये आत्मनिर्भर नाम का शब्द गुरुदेव ने 96 में मुझे दिया था, जो कि आदरणीय मोदी जी ने अभी आत्मनिर्भर भारत की बात की। राइट। मैंने वो पहली बार वो शब्द 96 में सुना था गुरुदेव के मुंह से। सभी गौशाला पांजरापोल को अपने को आत्मनिर्भर करनी है। तो आई सेड ओके, लेट्स सी कैसे कर सकते हैं। मैं कहा गुरुदेव कैसे करें इसको? तो ले गौशाला की जरूरत क्या, गाय की जरूरत क्या? अब ये तो मेरा स्टडी नहीं था, हीरे के व्यापारी को वो स्टडी कहाँ होता है। मैंने कहा गुरुदेव वो तो पता नहीं, चारा बारा तो खाते हैं, वही लाते हैं सब ट्रक भर भर के। बोले देखो कुछ स्टडी करो। तो वेणी सिंह मोराटी की कुछ पुस्तक, प्रभुदास भाई, बेचरदास भाई पारेख के कुछ पुस्तक गुरुदेव ने मुझे को दिए। बोले इसका स्टडी करो। उसी समय मैं का तो मैंने सामयिक चालू किए, और सामयिक में रोज अध्ययन चालू किया। तो अध्ययन से पता चलता गया कि पांजरापोल हो या गौशाला हो, आज से 200-250 साल पहले जब ये परंपरा शुरू हुई तो हमारे महाजन परंपरा के वरिष्ठों ने क्या किया था? 200 एकड़ जमीन, 500 एकड़ जमीन, 1000 एकड़ जमीन ले ली जी। उन्होंने कोई शेड, गोडाउन, ऐसे बहुत डेकोरेटिव कुछ कंस्ट्रक्शन किए ही नहीं। राइट। जमीन ले ली, और एक पांगला पोल कहते, पांगला पोल मतलब अपाहिज, अपंग पशु पहले ऐसे ही आते थे जी। वो चल के बाहर न चले जाए इसके लिए एक पांजरा लगा दिया, इसलिए पांगला पोल का पांजरा पोल हो गया था। थी चारे की, तो चारा उस जो जमीन लेके रखी उसमें से चारा आ जाता था, या तो इसी जमीन पे सभी पशुओं को रखा जाता था। तालाब हो जाता था तो उसमें पानी हो जाता था जी। और छाया चाहिए तो देशी वृक्ष जैसे कि बरगद, नीम, आम, इमली, हरडे, बेड़ा, आमला, पीपल, अर्जुन, कदम, करंज, औदुंबर, ऐसे 16 प्रकार के वृक्ष लग जाते थे। तो उसमें पक्षियों का भी निवारा हो जाता था, पशुओं को छाया मिल जाती थी, जमीन को नमी मिल जाती थी, और बारिश भी खींच के आता था भी, इतने सारे वृक्ष है। तो ये जब सब लगा तो मुझे लगा ग्राउंड रियलिटी में तो कुछ काम करना पड़ेगा। और उस समय धीरूभाई लीलचंद शाह जो मांडल पांजरापोल के ट्रस्टी थे, उनका संपर्क हुआ। वो बोले गिरीश भाई हमारे यहाँ आओ, आपको कुछ काम करना है तो यहाँ करो। तो मैं गया, 12 फुट जमीन कितनी होती है समझ में नहीं था, और उन्होंने वो जमीन मुझे बताई पहली बार। 1200 एकड़, वन पीस 1200 एकड़, उग्रोज की वीड बोलते हैं उसको, देरिया उग्रोज। कुल 1200 एकड़ थी 2 पीस में। तो सुबह से शाम घूमते रहे तो जमीन पूरी नहीं हो रही थी। और जैसे दिवाली के बाद गुरुदेव ने बताया, उसके 1 महीने बाद, मतलब करीब करीब समझो कि दिसंबर में कुछ हमने काम शुरू किया। तो फिर वो जो अध्ययन हुआ था उसके आधार पर मैंने कहा भाई इसमें चारा उगाएंगे। तो बबुल हुए थे सब, अंग्रेजी बबुल जिसको कहते हैं, कांटा वाले, तो इसको हटा देते हैं और पूरी जमीन को तैयार करके इसमें गोबर डाल के, घास का बीज डाल के और चारा उगाते हैं। एंड वो ट्रस्टी इतने अच्छे आदमी थे तो उन्होंने सब हाँ कर दी। और उस समय 96 में मुझे किसी से पैसा तो लेना नहीं था, मेरे को अपने खर्चे से ही काम करना था, क्योंकि जब नया काम है तो मैं किसी के पैसे से कैसे करूं, पहले अपने पैसे से ही काम शुरू करूं। तो मैंने ये काम शुरू किया और तालाब बनवाया उसमें, और 2500 नीम के पौधे लगाए। वो नीम के पौधे आज भी वहां पे बहुत अच्छी तरह से लहरा रहे हैं। 6 महीने काम चला और इतना मतलब काम करते थे तो कुछ गाइडेंस मिलता था, कोई लोग मिलते थे, कोई एक्सपीरियंस वाले लोग मिलते थे। मतलब ये समझ लो कि कुदरत ने
गुरुदेव ने, परमात्मा ने right. वो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर हाँ, दिया था। भी 1 बाय 1 एक एक स्टेप चढ़ते चढ़ते आप सीढ़ियां चढ़ते जाओ। मतलब आपने जैसे पूछा कि भाई कोई स्ट्रगल, सच कोई स्ट्रगल नहीं, ये सब काम करते करते उसका आनंद लेते गए। जी, और काम हमारा एक जो सोच थी, उस सोच तक उस काम का अंजाम हुआ। 6-8 महीने हो गए। अब सोचा कि बारिश का वेट करते हैं। कई वहाँ के लोकल लोग थे, बोले यहाँ तो बारिश आती ही कम है, नहीं आती है, नहीं के बराबर आती है। ओके, ठीक है भाई, वेट करेंगे। फॉर्चुनेटली उस समय इतना अच्छा बारिश हुआ कि पूरी 1200 एकड़ जमीन हरी भरी हो गई। सुपर माहौल हो गया, तालाब हो गए। जब उसके बाद में गया तो लोग बिल्कुल नाच रहे थे वहां पे कि ये काम तो पहली बार हमारे यहाँ ऐसा हुआ है करके। और बहुत अच्छा रिजल्ट आया। करीब 2000 पशु थे वहां पे। उनको 6 महीने तक वो चारा चला, तालाब का मीठा पानी मिल रहा। हमारे ना शास्त्रों में आता है परिश्रम की थ्वाय में, माही उत्तम हंस जलधर जलमा जानू जी। जलधर मतलब जलधर, तालाब। सर्वश्रेष्ठ पानी कौन सा? तो कि बारिश का पानी। जी। और मनुष्य के लिए क्या है, पानी तक का टांका बना लेते हम बारिश के पानी का घर में पीने के लिए। पशु के लिए तो टांका बनाना पॉसिबल नहीं है, तो तालाब भी बना लो। तो तालाब में जलचर भी, उसको भी निवाह हो जाएगा, पशुओं को भी मिल जाएगा। तो ये पहला प्रोजेक्ट हुआ। और सेठ आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी के अध्यक्ष महोदय आदरणीय श्रेणिक भाई कस्तूरभाई सेठ, उनको ये सारी बात पता चली। तो उनका एक दिन फोन आया कि गिरीश भाई आपने अच्छा काम किया है मंडल में, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। इट वॉज फॉर मी लाइक वो नोबल पारितोषिक था कि आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी के सर्वश्रेष्ठ जो सर्वोच्च सिरमौर व्यक्ति, जैन शासन के जो सिरमौर है, वो पहले ही प्रयास को सर्टिफाई करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। उससे बड़ा कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए अपने को। नोबल पारितोषिक था मेरे लिए। तो उन्होंने एक निवेदन किया कि क्या ये काम आप छपरियाली में कर सकते हैं? मैंने कहा जरूर कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा फंड वगैरह का मतलब इतना व्यवस्था मेरे पास। बोले कोई चिंता नहीं करो, 10, 20, 25 लाख जो भी खर्चा होगा हम आपको देंगे, लेकिन आप काम करो। तो ये छापरियाली है पालीताना के आगे 45 किलोमीटर। 3600 एकड़ का सिंगल पीस टुकड़ा है। 3600 एकड़ की जमीन है जहाँ पे करीब 5000 पशुओं की व्यवस्था होती है। आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी इस पंजरा को चलाती है। मैं पहली बार गया तो पूरा टोपोग्राफी हिल्ली है। मांडल तो प्लेन लैंड थी, ये तो पूरा हिल्ली है, ऐसे ऊंचे नीचे पहाड़। पालीताना ऐसे नजदीक है तो पालीताना टाइप की पूरी टोपोग्राफी है। तो उस समय इसका कोई मैं एक्सपर्ट नहीं था, मैं कोई इंजीनियरिंग का एक्सपर्ट भी नहीं था, लेकिन मैं वही कहना चाहता हूँ कि जब हम विल करते हैं, विल ब्रिंग यू द वे। तो मुझे जब मैं गया वहां पे तो हिल्ली सब देखा। तो कोई मेरे साथ 2-4 लोग थे, बोले इसमें कंटूरिंग करते हैं। कंटूरिंग क्या होता है? 5 फीट लंबा, 1 फुट चौड़ा और 1 फुट डीप खड्डे करने हैं पूरी हिल पे, ताकि 9 मीटर के फॉल में होते तो 9 मीटर के बीच का पानी उस 1 मीटर में जमा हो जाएगा। तो पूरा पानी फ्लो करके करके पूरी पहाड़ी पे पूरा पानी जमा हो जाएगा। उसकी जो मिट्टी निकली उस पे ही चारा उगाने का। वो जो पहाड़ है उसकी टॉप सॉइल लेके पानी आगे बहेगा नहीं। हमने एक ही जमीन पे नाला प्लग, गली प्लग, चेक डैम, तालाब, वो सारा काम 500 एकड़ में किया 3600 एकड़ में से। और उसमें चारा, बियारण सब डाला। इतना बढ़िया रिजल्ट आया वहां पे। तो ये भी ऑलमाइटी भगवान, कुदरत, अपनी गुड विशेस, ये सब होता ही है। और मैं तो इसका बहुत अनुभव करता हूँ, हर जगह पे अनुभव करता हूँ। कोई भी काम हाथ में लेता हूँ तो मैं बस यही अनुभव करता हूँ कि हम लोग तो सब कॉन्ट्रैक्टर है। मुझे प्लम्बिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, इनको डोर कीपिंग का, ऐसा मतलब हम हर एक की डेस्टिनी, हर एक का काम फिक्स है। हमें बस वो काम करना है और हमारी नैष्ठिक मानव की शुद्धि है, हम विचारधारा से स्पष्ट है और हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, तो उस काम का रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। बहुत अच्छा। तो आपने इसको किसान मित्र कैसे बनाया? किसान मित्र किसान के लिए भी हेल्पफुल रहा होगा। ऐसा है कि
जैसे कि एक पंजरापोल, 2 पंजरा ऐसे करते 2002 आ गई, पैसे लोग बहुत देने लग गए, तो हमने सोचा कि भाई इसका थोड़ा सिस्टमाइज कर दो। गुरुदेव की आज्ञा हुई कि आप एक संस्था स्थापना। मैंने कहा कौन से नाम से करे काम? तो आप महाजन हो, क्योंकि महाजन परंपरा ही ये सब चलाती है, हमें सभी महाजन का काम करना है, तो इसको समस्त महाजन कर दो। तो 2002 में हमने इसको रजिस्टर की, और फिर तो क्या है, संस्था चल रही है तो संस्था की व्यवस्था, संस्था के स्टाफ, संस्था का मैनेजमेंट, वो सब होता है। तो हमने एक व्यवस्था ये की कि भाई इस संस्था चलाने का जो कुछ खर्चा आएगा, 30-40 जो एग्जीक्यूटिव लोग हैं संस्था चलाने के लिए, वो सारा खर्चा वही लोग करेंगे। हम समाज के आए हुए दान में से 1 भी रुपया संस्था चलाने के लिए या स्टाफ के पगार में नहीं खर्चा करेंगे। लेकिन जब डोनेशन की बात आती है, मुझे कोई क्वेश्चन करता है कि भाई मैं 1000 पशु की पंजरापोल चला रहा हूँ, तो उसका पहला फिगर ये होगा, ऑडिटेड बैलेंस शीट बताएगा कि साहब देखो ना, साल का 1 करोड़ 1.25 करोड़ का खर्चा है, हम कैसे करें, हम ट्रस्टीज के पास जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, कैसे करें? तो वो मैं उनको इजी वे बताता हूँ। देखो, सबको खेती बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि जो भी ट्रस्टी है मोटा मोट राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या सभी भारत के सभी प्रदेशों में जो गौशाला पंजरापोल है, मोटा मोट ट्रस्टी कोई स्थल पे होता नहीं है। तो कोई शहरों में कोई व्यापारी है, कोई ऑफिसर है, एयर कंडीशन में ऑफिस में बैठ के उसको पंजरापोल की या गौशाला की बात करनी है जी। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि 1000 पशु की पंजरापोल, 1000 पशु की पंजरापोल को सस्टेन करनी है तो साल का 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ रुपया चाहिए। 1.5 करोड़ रुपया लाएंगे कहाँ से? और फिर कोई पंजरापोल का ट्रस्टी नजदीक आता है ना, तो आदमी अपना खिस्सा बचाने की मेहनत करने लगता है कि यार वो आ गया, खिस्सा काट लेगा। तो इसका रास्ता क्या? मैं जब मेरी 3-3 दिन की शिविरें लगती है, तो मैं उसमें ये सिखाता हूँ कि आप इसको 4 फोल्डर कर दीजिए। एक किसान मित्र, एक पशु मित्र, एक स्थानिक में अपनी जमीन पे चारा उगाने का व्यवस्था, और एक गोबर दे के चारा लेने की व्यवस्था। तो किसान मित्र क्या है? किसान मित्र ये है कि मानो कि आपके पास 1000 पशु है पंजरापोल में, तो 1000 आसपास के किसानों को अपने साथ जोड़ दीजिए। उसको बकायदा एक छोटा सा आईडी प्रूफ बना के किसान कार्ड दे दीजिए। उसके साथ ये कंडीशन करनी है, हम आपको गोबर देंगे, आप हमको चारा दीजिए। बार्टर सिस्टम, न हम गोबर का पैसा लेंगे, न हम चारे का पैसा देंगे। तो 1000 पशु है जिसके पास, उसका मिनिमम कलेक्शन ऑफ गोबर पर डे वो 5000 किलो होता है, 5 kg के एवरेज से। वैसे ज्यादा भी हो सकता है, प्रॉपर कलेक्शन हुआ तो 10,000 किलो हो सकता है, लेकिन मिनिमम 5000 किलो है। 5000 किलो गोबर मतलब 2 से 3 ट्रॉली हो गई जी। तो साल की 1000 ट्रॉली हो गई। तो हम हर किसान को 1 ट्रॉली गोबर फ्री देंगे जी। उसके सामने हमको 1 ट्रॉली चारा फ्री देगा। तो हमारी जो चारे की रिक्वायरमेंट है उसमें पूरी हो जाएगी। और कम पड़ेगी तो उसका क्या पर्याय है वो भी बताता हूँ। लेकिन किसान में हम क्या करते हैं, पशु किसका है? या तो पशुपालक का या किसान का, बराबर। वो जब काम का नहीं रहता है, उसके लिए हल में नहीं चलाता है, बैलगाड़ी में नहीं चलाता है, या दूध नहीं देती है, तो उसको या तो रास्ते पे छोड़ देता है। रास्ते पे छोड़ी हुई पशुओं की हालत बहुत बुरी होती है, या तो वो कसाई खाने चले जाते हैं या फिर पंजरापोल में आते हैं। पंजरापोल हमेशा ये तकलीफ में, भी मेरे पास 1000 है, अब कितने रखूं, मेरी भी तो कोई कैपेसिटी है पशु पैसा लाने की, और ये हमेशा कश्मकश चलती रहती है। इसमें यदि किसान जुड़ जाते हैं हमारी व्यवस्था मैनेजमेंट के सपोर्ट में, किसान के पास गोबर जाएगा, उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग करेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो धान उगेगा उससे लोगों को भी फायदा हो जाएगा जी, और गोबर उसको मिल जाएगा, उसको जो चारा हो गया है चारा अपने को मिलेगा, गौशाला को तो गाय चारा के अलावा तो कुछ खाती नहीं है ना, उसको अचार चाहिए, पापड़ चाहिए, मिठाई चाहिए, तो सिर्फ चारा मांगती है। तो ये बार्टर सिस्टम है राइट। और इसको किसान मित्र कार्ड के माध्यम से ज्वाइंट करेंगे तो उसको भी लगेगा भी मैं कोई वैल्यूएबल मेंबर, उसका कोई चार्ज नहीं, कोई कार्ड नहीं, लेकिन उसमें प्रॉमिस होता है कि भाई आप अपने पशु को किसी को बेचोगे नहीं, आप हमको दोगे,
आप हाँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे, उसके लिए चाहिए वो गोबर और गोमूत्र हम आपको देंगे, तो दैट इज किसान कार्ड। फिर पशु मित्र, 1000 पशु की पांजरापोल है, तो उसके प्रवासी लोग, उस गांव के जो बाहर गांव रहते हैं, शहरों में रहते हैं वो, और गांव में भी कोई धनी सुखी लोग है, तो हर एक ने सिर्फ कितना देना है, 50 रुपया पर डे पर कैटल। एक गाय का रोज का खर्चा 50 रुपया है। राइट। मानो कि 10 किलो चारा खिलाना है, 5 रुपए किलो की ऑन एंड एवरेज होती है, तो 50 रुपये में गाय का निभाव हो जाता है। हमारे खिस्से में से रोज 50 रुपया निकले, कोई बड़ी बात नहीं है। महीने का 1500, 12 महीने का 18,000 रुपया। 18,000 रुपया जो व्यक्ति पांजरापोल को डोनेट करेगा वो हमारा पशु मित्र हो गया। उसकी तरफ से एक पशु को पांजरापोल में निभाई जाएगी। उससे क्या होगा, नहीं तो क्या होता है नॉर्मली पांजरापोल के ट्रस्टी जब पैसा लेने जाते हैं तो भैया लाख दे दो, 2 लाख दे दो, मतलब थोड़ा सा ओवरबर्डन भी हो जाता है किसी के ऊपर। 18,000 से ज्यादा किसी से लेना ही नहीं है। आप एक पशु को गोद ले लो बस, दत्तक। आपकी कैपेसिटी है या आपकी इच्छा है या भावना है तो परिवार में 5 लोग या 11 लोग तो 11 लोग, लेकिन मिनिमम एक रखो। तो 1000 पशु है तो 1000 पशु के 18,000 के हिसाब से 1,80,00,000 रुपया बहुत माइक्रो फाइनेंसिंग से पांजरापोल के पास आ जाएंगे। और 1000 लोग पशु मित्र बन गए, पशु मित्र बने तो उनको उनके बर्थडे पे कार्ड भेज सकते हैं, ग्रीटिंग्स भेज सकते हैं, उनको गौशाला में इनवाइट कर सकते हैं, वे आज आपका जन्मदिन है। गौशाला में एक फ्लैक्स जैसा बैनर बना के उस पे उनका नाम लिख सकते हैं। साल में एक बार ही पूछना है फिर तो, भैया पिछले साल 15,000 भेजे थे, इस साल भी भेज रहे हो ना। मोटा मोट किसी ने एक बार गौशाला में पांजरापोल में पैसा देना शुरू किया तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ 99% कोई रिफ्यूज नहीं करेगा। तीसरा पॉइंट है, जो जुनी जितनी गौशाला पांजरापोल है, हर एक के पास 200 एकड़, 500 एकड़, 1000 एकड़, 2000 एकड़, राजस्थान में एक जगह पे 10-10 हजार एकड़, 5-5 हजार एकड़ जमीन है गौशाला के पास। उनको अच्छा साइंटिफिकली डेवलप करके चारा उगा दो, तो गौवा चरे, गौ चरे, चितड़ू वाछड़ी या माँ। गाय पेट तभी भरता है गाय का जब वो गौचर में घूमती है। स्टॉल फीडिंग जिसको कहते हैं, फॉरेन की सिस्टम है स्टॉल फीडिंग। एक जगह खड़ी रखो उसको, वही खाएगी, वही गोबर करेगी। यदि यही हालत मनुष्य की हो गई, जहां बैठो वहीं खाओ और वहीं पे टॉयलेट करो, क्या हालत हो जाएगी। तो गाय को, पशुओं को मिनिमम 5 to 7 किलोमीटर रोज घुमाना है। ये बड़ी बड़ी जमीनें थी। गोचरी शब्द है ना, गोचरी गुरु भगवंत और वो चरी, गाय चरती है, वैसे गुरु भगवंत औरतें हैं। गाय के चरे के ऊपर से गोचरी शब्द निकला है। गाय कभी भी खाना खाने जाएगी तो एक जगह पे अच्छा घास है तो सारा नहीं खा लेगी, ऊपर से थोड़ा खाएगी, आगे जाएगी, पीछे वाले का सोच के जाएगी। वो नहीं तो क्या होता है, चलो इधर 10 किलो का एक बड़ा ऐसा चारा उगा है, खड़े रह के खा लो। राइट है। कभी नहीं होता है। गोचर में घूमती जाएगी, थोड़ा थोड़ा खाएगी, आगे जाएगी, थोड़ा खाएगी, आगे जाएगी। महाराज साहब भी क्या करेंगे, आपके घर पे पधारे हैं, अब घर में 4 लोग हैं, आपने बादाम का सिरा बनाया है, तो 15 लोग हैं, तो आपने जो 4 लोगों को बनाया वो पूरा सिरा उनको खप सकता है, लेकिन एक चमची से ज्यादा लेंगे नहीं लेंगे। तो आपका सोच के वो भी पूछेंगे, आपके लिए गुरु महाराज के लिए तो नहीं बनाया, ऐसा तो नहीं है, सारी सोच। तो ये गौचरी शब्द एक गाय के चरने के आधार पे बना है। तो पांजरापोल में अपना चारा होना चाहिए, जिसको ग्रासलैंड कहते हैं, चारागाह कहते हैं, गौचर कहते हैं, ओरण भूमि राजस्थान में कहते हैं। भारत के 6.5 लाख गांव, सभी गांव में गौचर है। गौशाला का नहीं, पांजरापोल का नहीं, लेकिन गांव का गौचर है। और मराठी में उसको गायरान कहते हैं। तो हम भारत सोने की चिड़िया थी, वो कैसे थी, दूध घी की नदियां बहती थी, कैसे बहती थी। यहाँ तो अभी पानी की नदी भी सूख गई है, बिल्कुल, और लहू की नदी बह रही है। तो ये सारी सिस्टम हर गांव में कैसे थी। एक तो अपने को अपना चारा उगाना है गौशाला में, और उसमें भी देसी प्रकार के चारे, सब जिंजवा है, शनियार है, सेवन है, देसी प्रकार के, जिससे पांजरापोल गौशाला का आर्थिक बर्डन बिल्कुल कम हो जाएगा। मतलब आत्मनिर्भर बना दिया आपने उनको।
बिल्कुल आत्मनिर्भर बन जाएगी। तो एनिमल रिसोर्ट कैसे बनाते हैं फिर आप? उसमें सब कुछ उनके लिए होता है, एनिमल्स के लिए। ऐसा है कि आज से 25-30 साल पहले हम्म। जब शादी का मुहूर्त पूछने जाते जी। जोशी जी के पास, मतलब ज्योतिष के हम्म। पास, हम्म। तो कोई मुहूर्त उसको सेट नहीं होता तो वो क्या कहता मालूम है? हम्म। गोधुली बेलाए शादी करा दो। सुना है कभी आपने हाँ शब्द? हाँ हाँ। जी बराबर है, जी आपकी जी शादी जी। भी शायद गोधुली बेला हुई हाँ होगी, हाँ पता नहीं हाँ। मुझे। जी। तो गोधुली बेला क्या है? हम्म। गाय जब गौचर में चरती है सुबह से शाम, हम्म। तालाब में पानी पीती है, आपने कई गांवों में ये देखा होगा कि दौड़ दौड़ के अपने घर तक आती है शाम को। जी जी। उसको गोधुली बेला कहते हैं। हाँ। धूल वाले रास्ते थे तो दौड़ के आती, उस समय सारी धूल आकाश में फैल जाती थी, हाँ। और जितने भी खराब ग्रह थे वो एक वातावरण में एक पूरा ऐसा तंबू जैसा हो जाता था कि सारे राइट। ग्रह रुक जाते थे ऊपर, खराब ग्रह, हम्म। और एकदम हम्म। गोधुली बेला हो जाती थी। उस समय हम्म। शादी कर लो तो शादी समझो 100 साल चल गई। और ओके। अभी तो एयर कंडीशन हॉल में होती है शादी, 2 महीने के बाद फटाकड़े चालू हो जाते हैं, राइट एफसी के बीच में, कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में शादियां होती हैं। राइट राइट राइट। मेरा ये प्रस्ताव है एनिमल रिजॉर्ट के माध्यम से हाँ। कि जो भी अच्छे कार्यक्रम है, अभी आप 5 स्टार होटल में करो जहाँ वेज नॉन वेज मिक्स है, या जहाँ पे करो ऐसे एयर कंडीशन हॉलों में जहाँ पे बहुत गंदगी अ, राइट। हवा की है, कार्बन हम्म। डाइऑक्साइड की है, सीएफसी की हम्म। है, उसकी जगह पे ऐसे सारे कार्यक्रम हम क्यों पांजराबल गौशाला में ना करें, गायों के हाँ। बीच में करें। राइट। ये प्रयोग हमने शुरू किया, जलगांव में किया है, हाँ हाँ। यहाँ गुजरात में वापी में किया है, हम्म। दामोदर गौशाला में। वहाँ पे हम्म। अच्छे 4, 6, 10 कमरे बना दिए रिजॉर्ट टाइप के, हम्म। हम्म। बराबर है, एक अच्छा सा हॉल बना दिया, अच्छा हम्म। किचन है, साफ सुथरा है, हम्म। वहाँ आओ, वहाँ शादी करो, हम्म। या बर्थडे पार्टी मनाओ गायों के बीच में, राइट। गाय को हाँ दूध हाँ। पिलाओ। और मैं हम्म। ये अनुभव से कहता हूँ, हाथ में गुड़ ले लो हम्म। और गाय को नजदीक जाके खिलाओ, हम्म। गाय खाते खाते अपना हाथ चाटना शुरू करेगी, जी। हाथ चाटेगी तो हाथ की सारी खराब रेखाएं दूर हो जाएगी। ये मैं हाँ अंधश्रद्धा से नहीं कह रहा हूँ, ये हाँ। हाँ। वास्तविकता है। इसीलिए हम्म। अपने यहाँ गाय को गोग्रास की बात थी, परंपराएं थी, सुबह गाय को धोने के बाद गौचर में चराने के लिए ले जाने की बात थी। तो ये सारी परंपराओं के पीछे बहुत बड़ा साइंस था, इसको राइट। अंधश्रद्धा का नाम देके हमने इसको डुबो दिया। तो आज भारत में तो पूजा ही जाता है गौ माता को, तो खास है अपने पूजा ही भारत के जाता लिए। है, अभी प्रतीक रूप से पूजा जा रहा है, बाकी तो कट रही है ज्यादा। हाँ। तो उसके लिए सर आप क्या करते हैं फिर? तो एनिमल एनिमल सेक्रीफाइस जो होता है उसके लिए कुछ एक्शंस? सी, एनिमल सेक्रीफाइस इज लीगली नॉट अलाउड। हाँ, अनफॉर्चुनेटली इस देश में कुछ कानून ऐसे हैं जिससे स्लॉटरिंग इज अलाउड। अब पीसी एक्ट 1960, मतलब प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स 1960, वो एक्ट लोकसभा में पसार हुआ और उसका कायदा बन गया 1960 से, 1960 से। तब से आप पशु को लकड़ी भी मारो तो 50 रुपया दंड होगा, लेकिन कानून की कुछ व्यवस्था ऐसी है कि यदि उसको काट डालो तो आपको जी। 500 रुपया सब्सिडी मिलेगी। स्लॉटर हाउस को सब्सिडी है। हाँ हाँ तो हाँ। ये दुर्भाग्य है इस देश का और इस देश की प्रजा का कि यहाँ पे लकड़ी मारने का 50 रुपया दंड है और काटने का पैसा मिल रहा है। और ये भी, हम क्यों इतने पशुओं को काट रहे हैं? एक्सपोर्ट के लिए, मीट एक्सपोर्ट के लिए। हाँ हाँ हाँ। अरे क्या जरूरत है? पशुओं को काट के उस पैसे से इस देश का विकास नहीं कर रहे हैं भाई, नहीं होगा विकास, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देश हजारों साल से चल रहा है, लाखों साल चलने वाला है। ये 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 विकास के इस नए आयाम में 1991 से मीट एक्सपोर्ट जो चालू हुआ, उससे इतना बड़ा इस देश को नुकसान हुआ है। पशुओं को मार दो, मतलब गोबर गया उस दिन से ही, गोबर गया तो ऑर्गेनिक राइट फार्मिंग गई। और एक तरफ राइट। आप फॉरेन पशुओं को काट के भेजो और उसका फॉरेन एक्सचेंज लाओ, और दूसरी तरफ इतना यूरिया फर्टिलाइजर और वो सब लाओ, उसके लिए वही डॉलर दे दो।
देने वाला काम ज्यादा है और आने वाला काम तो बहुत कम है। 15 हजार करोड़ रुपया कुछ आता है, 70,000 करोड़ रुपीस तो फर्टिलाइजर का जाता है। कि ये पशु दूध देगा कि नहीं देगा, वो मरे दम तक गोबर देगा, गोमूत्र देगा। राइट। और जब आज इस देश को लॉकडाउन के बाद पता चल गया है बिना ऑर्गेनिक फार्मिंग और बिना ऑर्गेनिक खाए हमारा स्वास्थ्य सुधरने वाला नहीं है, इम्यूनिटी बढ़ने वाली नहीं है। गोबर के लिए भी हमें हमारे हर पशु को बचाना पड़ेगा, किसी को भी मारने की जरूरत नहीं है। और उसी गोबर से इतना सारा फसल पैदा हो जाएगा कि इस देश के 130 करोड़ लोग तो ऐसे ही खाना आराम से खा लेंगे। देखो आपको बताओ, 6.5 लाख गांव है भारत में, बराबर? हर गांव में 2000 लोग आराम से रह सकते हैं। 6.5 लाख इंटू 2000 मतलब 130 करोड़ लोग तो गांव में ही रह जाएंगे, आराम से रह जाएंगे। शहरों की जनसंख्या और छोटे क्षेत्रों की जनसंख्या तो और रहेगी। तो 130 करोड़ की जनसंख्या कोई विस्फोट नहीं है, ये तो ऊपर से वरदान है। जनसंख्या होगी तो सारा जो सिस्टम है, बिजनेस है, इकोनॉमी है, क्योंकि वही तो कंज्यूमर है, राइट, बाय करेगा, वो बाय करेगा तो बाजार चलेगा। तो और वो सारा बाजार किस पे चलेगा? आत्मनिर्भर भारत कैसे होगा? आत्मनिर्भर भारत, एक गांव को पकड़ लो एग्जांपल पे, गांव में यदि तालाब है 8 दिशा में, 8 दिशा में इसलिए कि पानी जब ऊपर से गिरता है तो 8 दिशा में बहता है, राइट। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम दक्षिण, फिर वायव्य नैऋत्य ईशान आग्नेय, 8 दिशा में तालाब की एक परंपरा थी। वो 8 दिशा का पानी भर जाएगा, उसको कैनल थी जो अपने गांव को कनेक्ट करता था तालाब। यहाँ का ओवरफ्लो हो गया, यहाँ कोई भी नुकसान करके आगे गांव में चला जाता, आगे से आगे। इससे पूरे भारत में कैनलिंग है और ये हजारों साल की परंपरा से है, आज की कोई नई बात नहीं है जी। तो तालाब हो गया। 4 इंच बारिश में यदि इजराइल पूरे दुनिया को फ्रूट खिला सकता है, हम 40 इंच में हम अकाल की बूम करते हैं, तो हम रॉन्ग है कहीं ना कहीं। हम ये कहते हैं भी अकाल हो गया, अकाल हो गया जी, अकाल है ही नहीं। मैनेजमेंट ठीक चाहिए, मैनेजमेंट की कमी है, राइट है। हर गांव में 2 गौचर है, एक 4 महीने का बारिश के समय का, एक 8 महीने का, उसको बारिश के समय रिजर्व रखते थे इसमें बड़ा बड़ा चारा हो जाए जो 8 महीने चले। तो हर गांव में 2 गौचर थे। तो पशु है, जैसे कि उस पशु गौचर में चरेगा, तालाब में पानी पिएगा, उसका दूध देगा। तो हमारे घर में जितनी दूध की जरूरत है उससे जो एक्स्ट्रा बचेगा उसका मक्खन बन के घी बनेगा, घी बेच के उसकी आवक आएगी गांव में, तो पैसा आया। उसी के गोबर से गांव के ऑर्गेनिक खेती हो जाएगी, गांव में फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का खर्चा नहीं रहेगा, और उस गोबर से खेती हो गई, ऑर्गेनिक माल सामान बाजार में बेच दो, उसका भी पैसा आया। तो एक गांव, जिस गांव में गौचर है, तालाब है और 16 प्रकार के देशी वृक्ष, एक व्यक्ति दीठ, मतलब गांव में 2000 लोग है तो 32,000 वृक्ष चाहिए गांव में। ओके, तो आप पूछोगे इतने कहाँ लगाओगे? गौचर की बाउंड्रियों पे, रेजिडेंट की बाउंड्रियों पे, 8 तालाब की बाउंड्री पे, 8 तालाब की केवल की बाउंड्री पे, आराम से 32,000 वृक्ष लग सकते हैं एक गांव में। अब 32,000 वृक्ष एक गांव में लग गए, जिसमें बरगद है, आम है, इमली है, नीम है, हरड़े बेड़ा, आमला है, 16 प्रकार के वृक्ष जब कदम, करंज, अर्जुन और 16 प्रकार के वृक्ष जब लग गए तो उस गांव में पक्षियों का निवारा अच्छा हो जाएगा, पक्षियों को खाने के लिए कोई तकलीफ नहीं। ये तो भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, क्योंकि हर गांव में चिड़िया थी यहाँ पे, हर गांव में घी दूध की नदियां थी जी। इसके लिए न फॉरेन से चारा लाना पड़ता था, न फॉरेन की टेक्निक लानी पड़ती थी, कोई पेटेंटेड लोगों को कुछ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए भी पैसा देना पड़ता था, क्योंकि गांव में ही पशु है और गांव में सांड है, तो इंसेमिनेशन उसी सांड से हो जाता था। 2 साल के बाद एक गांव का सांड दूसरे गांव के सांड के साथ बदल देते थे, अदला बदली चलती थी ताकि सगोत्री न हो। भी परंपरा मनुष्य में जो है उसी प्रकार की है, तो उसी की बछड़ी के साथ बछड़ा पैदा न करे, इसलिए 2 साल 3 साल में सांड दूसरे गांव के साथ बदल देते थे। पूरी व्यवस्था बिना पैसे से चलती थी, इसमें पैसों की जरूरत, पैसों का उत्पन्न नहीं था, इसीलिए गोमय वसते लक्ष्मी, गोबर में
लक्ष्मी जी का वास इस सेंस में कहा गया है। गोबर है तो गोबर से ऑर्गेनिक फार्मिंग है, राइट, गोमूत्र से पेस्टिसाइड्स का प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, और फसल कभी खराब नहीं होगी, जमीन कभी खराब नहीं होगी। पूरी व्यवस्था इस पे चलती थी, पशुओं के आधार पे जीवन व्यवस्था चल रही थी। अनंत चतुष्क कहते हैं जड़, जंगल, जमीन और जनावर, चार के आधार पे जीवन चलता था। बिल्कुल। जन मतलब मनुष्य, जड़, जड़ मतलब पानी, जंगल वृक्ष, जमीन जानवर, जड़ जंगल जमीन जानवर, चार पे जन मतलब मनुष्य डिपेंड है चार पे। आज आप देखिए हमने चारों की हालत खराब कर दी, राइट, तो मनुष्य की हालत खराब होने ही वाली है। कोरोना क्या, कोरोना से बड़े बड़े आ जाएंगे फिर तो जी, क्योंकि हमने जीव सृष्टि पे इतना आक्रमण किया है, इतना अतिक्रमण किया है। तो वो तो अभी आप देखो, हम पिंजरे में जू में पशुओं को देखने जाते थे, 4 महीने तक लोगों ने हमको पिंजरे में देख लिया, राइट, बाहर नहीं निकल पाए। बिल्कुल। सर आपकी संस्था तो लाइक फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देती है गांव वालों को हु नीड्स दैट, और केरला फ्लड्स और ऐसे मतलब नेचुरल कैलेमिटीज में भी काम करती है, तो कैसे आप पहुंच पाते हैं वहां तक? ऐसा है, हमारा 5 फोल्डर्स है मेन। महत्व का फोल्डर है, उसके बाद नेचुरल कैलेमिटी हमारा सेकंड फोल्डर। कहीं पे भी कुछ भी नेचुरल कैलेमिटी होती है, हम इमीडिएट पहुंचने वाले में से हैं। वहां जाके कहीं खाना लगा दिया, मतलब 1000, 2000, 5000 लोगों को रोज शुद्ध सात्विक भोजन दे दिया, या राशन किट दे दी, या कोई जीवन जरूरियात की चीजें दे दी, या मकान बांध के दे दिए। तो ये नेचुरल कैलेमिटी में हम लोग काम करते हैं। ओके। दूसरी बात है रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट मतलब क्या? रूरल डेवलपमेंट मतलब हमने अभी तक 500 गांव में तालाब बना के दिए, गौचर बना के दिए, रोपण किया। मैं 3 चीज आ गई ना कोई भी गांव में, मुझे ये लगता है कि उस गांव के रास्ते नहीं ठीक होंगे तो भी चल जाएगा। कोई वहां पे आरसीसी या सीमेंट के या डामर के रास्तों की जरूरत नहीं है। ये 3 चीज ठीक से कर लो, उस गांव का कल्याण हो गया। अभी तो हम लोगों ने 500 गांव के काम किए हैं। कोई भी गांव में मैं 3 साल 5 साल के बाद भी जाता हूँ या नहीं भी जाता हूँ, उस गांव में किसी बेटी की शादी होती है, बेटे की शादी होती है, मुझे आमंत्रण कार्ड आता है, वो अटैचमेंट गांव वालों से हो जाता है, क्योंकि उनकी पूरी जीवन की व्यवस्था बदल जाती है। पानी पे भी तो जीवन है, पानी हो गया, पानी रिचार्ज भी हो रहा है, धारा हो गया तो पशु नब रहे हैं, तो किसी को नहीं है, और वृक्ष लग गए तो पूरा गांव नंदनवन हो गया है। ऐसे कई सारे गांव हैं। अभी रिसेंटली हमने मेहसाणा जिला गुजरात का है, उसमें कनोड़ा गांव का काम इस साल किया, लॉकडाउन के चलते बीच बीच में करके काम किया, लॉकडाउन खत्म काम चालू किया। 150 बीघा में चारा हो गया। पानी तो इतना आ गया तो पूरा 10 एकड़ का तालाब छलोछल भर गया है। राइट। 150 बीघा में 3000 पशुओं का आराम से निवारण चल रहा है वहां पे। तो मेन वर्किंग एरिया कौन सा है आपका? लाइक वैसे हम लोग मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, 4 राज्यों में तो मुख्यत्व काम करते हैं, लेकिन अभी तो मैं ऑल इंडिया लेवल पे कहीं पे भी मतलब गाइडेंस तो करते ही है जी, असिस्टेंस भी करते हैं। हमारे जैसे CSR फंड हमारे पास आता है, कई अच्छी अच्छी कंपनियां चाहती है कि हमारे थ्रू फंड, मतलब हम NGO पार्टनर के रूप में काम करते हैं। हमारी संस्था का महत्व का ये है कि हमारे पास कोई FD हम रखते नहीं है। ओके। जो रुपया जो डोनर देता है वो 100% इसी काम में खर्चा हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जीरो है हमारी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हम एग्जीक्यूटिव बेयर करते हैं। और हमारी खुद की ऐसी कोई बड़ी एसेट्स नहीं है। तो हमें जो डोनेशन देने वाले लोग हैं वो पूरे विश्वास के साथ देते हैं, इनको करोड़ रुपया भी दो, करोड़ का करोड़ रुपया एंड यूज में खर्चा हो जाएगा। पिछले साल की हमारी बैलेंस शीट 23 करोड़ रुपया की है। 23 रुपया भी मांगने नहीं जाना पड़ा है। सरकार हो या लोग हो, सामने से पैसा देते हैं जी। तो जैसे मैंने बताया रूरल डेवलपमेंट जी, फिर नेचुरल कैलेमिटी जी, वैसे एजुकेशन एक बड़ा सेक्टर है हमारा, जिसमें हम लोग गुरुकुल पद्धति से बच्चों को पढ़ाना, और नॉर्मल एजुकेशन में भी ऐसे 3 स्कूल बनाए हैं अभी तक मध्य प्रदेश में। 2500 बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरे खुद के बच्चे गुरुकुल में पढ़े हैं, मैंने नहीं भेजा है स्कूल में जी।
हाँ। लेकिन और मैं मानता भी हूँ, स्ट्रांगली मानता हूँ, गुरुकुल पद्धति से ही बच्चों को डेवलप करना चाहिए जी। यहाँ की 12 साल तो बिन जरूरी पढ़ करते हैं, अकबर का हाँ। जन्मा और ये कब हुआ, राइट कोई राइट राइट। आवश्यकता ही नहीं है जीवन में, ऐसा कुछ बिल्कुल। बिन जरूरी पढ़ लेते हैं। तो इस पद्धति से तो ये हमारे मेन फोल्डर्स हो गए। राइट। अनुकंपा सादर विपत्ति है, भाई किसी को जो अचानक तकलीफ आ गई तो उसमें सपोर्ट करना। तो 5 फोल्डर में मोटा मोटा हमारा काम चालू रहता है और 24/7 एक्टिविटी रहती है। कांस्टेंट FCRA का फंड, CSR का फंड और लोकल डोनर्स का फंड, जैन संघों का बहुत बड़ा योगदान, गुरु भगवंतों का बहुत बड़ा आशीर्वाद। आज चारों फिरकों के सभी गुरु भगवंतों का आशीर्वाद मिलते रहता है। सभी से परिचय में भी हूँ और सबको मिलना भी होते रहता है आगे पीछे कहीं ना कहीं कार्यक्रमों में। तो इस तरह से पूरी एक्टिविटी। गिरीश जी, तो गवर्नमेंट कितना हेल्पफुल रहती है इसमें? ऐसा है कि विनोबा भावे ने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया है, जितना असरकारी उतना असरकारी। असरकारी मोटा हम लोग सरकार की कोई डायरेक्ट हेल्प लेते नहीं है, संस्था में तो नहीं लेते। हाँ, पिछले साल जालना जिला महाराष्ट्र में 303 गांवों का रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम हमको सरकार ने दिया था, तो पूरा सरकारी 16 करोड़ का फंड उनका ही था। लेकिन वो कैसा था कि मशीन हमने लगाया, मशीन का 3,22,000 पेमेंट हुआ, 3,22,000 सरकार क्या है मशीन को दे दिए, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी हम थे, हमारा स्टाफ मॉनिटर करता था काम को। तो 1 रुपया भी आया नहीं, संस्था का हो सकता है 20-25 लाख खर्चा हुआ होगा। राइट। सरकारी फंड में बहुत हम डिपेंड नहीं करते हैं, समाज के फंड से ही ज्यादा काम होता है। सरकार की अपनी व्यवस्था है, वो कर ही रहे, तो उसमें कोई वो नहीं है। तो आपने बोला कि आप शिविर चलाते हैं, वो शिविर क्या होता है, किस तरह के होता है? ऐसा है कि 3 दिन की रेसिडेंशियल ट्रैवलिंग शिविर होती है। ये अभी पिछले 2 साल से हम कर रहे हैं। पिछले साल करीब 3,000 लोगों को हमने ट्रेनिंग दी और राजस्थान के अलग अलग जिले के गौशाला पांजरापोल के प्रतिनिधि और जीवदया प्रेमी, मतलब ऐसी 5 अलग अलग डिवीजन किए राजस्थान के, एक साथ 500 से ज्यादा को अकोमोडेट नहीं कर सकते थे, तो 6 शिविर की पिछले साल। हर 1.5 महीने 2 महीने में शिविर है। 2,000 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज भर के आना है जिसको भी सीखना है उसको। उसमें उसका सिर्फ स्टे एंड फूड का ही कॉस्ट होता है, लॉजिंग उसके अपने हाथ पे है। द पर्सन हु इज कमिंग आएगा उसको 4 से 5,000 का खर्चा होगा। लेकिन वो क्या सीखेगा? तो सबसे पहले हम पिंडवाड़ा ले जाते हैं, सूर्य प्रेम जीव रक्षा केंद्र परले। वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि हाउ नाइसली द कंस्ट्रक्शन इज डन, कितने बढ़िया तरह से पूरी एक गौशाला की डिजाइन बनी है जिसमें पशु को कम से कम तकलीफ हो। तो वो हम बताते हैं, क्योंकि आजकल क्या है कि पशु पांजरापोल बनाना मतलब 2 पतरे लगा दिए, 2 बांबू लगा दिए, गौशाला हो गई, ऐसा होता है। या तो 50 साल पुरानी है, 100 साल पुरानी है, ऊपर से छत से पानी गिर रहा है, स्टाफ का ठिकाना नहीं है, वेटरनरी डॉक्टर का ठिकाना नहीं है, हॉस्पिटल का गोडाउन ठीक नहीं है, गोडाउन में पानी चुभ रहा है, अब करोड़ों का चारा समाज को देता है, वो चारा लाया है, चारा भीग गया, चारा जल गया, सारे वहां पे ये बताते कि कितनी अच्छी तरह से डिजाइन बना के गौशाला बनानी है। प्रैक्टिकल बताते हैं, मतलब वो देखेंगे तो ही पता चले, मैं मैप पे जितनी भी अच्छी बनाऊं वो मालूम नहीं पड़ेगा। उसके बाद उनको KP संघवी पावापुरी में ले जाते हैं। तो वहां पे ये बताते हैं कि भाई ये मरुधर में रण में इन्होंने 1.5 लाख नीम लगाए हैं, 6,000 गायों की देखभाल कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं देखो, 6,000 गाय एट ए प्लेस। कई लोगों ने 100 गाय रखी तो अपने आप को सिकंदर समझ लेते हैं, तो हमने तो 100 गाय रखी है, 1 गाय रखे वो भी महान है। लेकिन ये महानता गर्व मतलब अभिमान करने की बात नहीं होनी चाहिए, सेवा की भाव होनी चाहिए कि भाई मैं 1 गाय की सेवा करूं, मैं 100 की सेवा करूं, मैं 1000 की करूं। KP संघवी पावापुरी में 6,000 की सेवा होती है। वो उनको बताते कि प्रैक्टिकली चारा कैसे डालते हैं, लड्डू कैसे डालते हैं, गायों को कैसे सफाई कराते हैं, गोबर करते हैं। फिर उनका एक बम्बा फार्म है, 900 बीघा में चारा उगाया है KP संघवी परिवार ने, वो है बेरू पार्क के पास, वहां ले जाते हैं। अब देख लो, स्प्रिंकलर डाल के उगाया हुआ चारा है साइंटिफिकली, उसी चारे को काट के रोज गाय को खिला रहे हैं, या तो गौचर में उसको गाय को छोड़ रहे हैं। दैट इज ऑल्सो मतलब
वो प्रैक्टिकल बताते हैं, हाँ। फीचर होता है। उसके बाद भाबर लाते हैं जलाराम गौशाला, 10,000 गौ माता है वहां पे मेरे पास। और सिविल हॉस्पिटल है गायों की, 16 वार्ड है, कैंसर वार्ड, गायनेक वार्ड, फ्रैक्चर वार्ड, अंधी पशुओं का वार्ड, 250 अंधे पशु है मेरे पास वहां पे। और आईसीयू वार्ड है, बर्न पशु का वार्ड है, जो जल जाते हैं एसिड डाल के, उनके लिए एयर कंडीशन वार्ड है। सब पूरा वो बताते हैं। 65 डॉक्टर की टीम है, 12 एम्बुलेंस है, हाइड्रोलिक है, सब ये बताते हैं। वहां पे शेड कैसे बनाए, उसकी डिजाइन कैसे बनाई, 150 नई डेवलपमेंट की है। फिर हम लोग उनको अहमदाबाद लाते हैं, बंसीगिर गौशाला में, रास्ते में बाबा के दर्शन कराते हैं, बंसीगिर गौशाला में लाते हैं। और हर जगह पे उतारा भी कैसे होता है, भोजन भी कहाँ होता है, केपी संघवी पावापुरी में भोजन शुद्ध सात्विक, जीरावाला या बेरू तारक में। तो दादा के दर्शन भी हो जाते हैं, भोजन भी हो जाता है, रात्रि भोजन कराते नहीं है किसी को। मुकाम होता है भिलड़िया जी में, सुबह वहां पे हो गया, दोपहर का संखेश्वर में भोजन हो गया, शाम को बंसीगिर गौशाला में भोजन शुद्ध सात्विक। 700 गायों की गौशाला है, हर गाय रोज 20 लीटर दूध दे रही है। एक हीरे का व्यापारी जिसका नाम है गोपाल सुतारिया, वो बॉम्बे छोड़ के, हीरे का व्यापार छोड़ के यहाँ आके 700 गाय के आधार पे पूरा एम्पायर खड़ा करता है, करोड़ों रुपया कमाता है। तो वो देखने जैसा मॉडल है, क्योंकि कई लोग क्या गौशाला भी बनाना चाहते हैं, तो अच्छी बात है ना। और कामदेव श्रावक जो भगवान के श्रावक थे, महावीर भगवान के, उनके पास 10-10 हजार गायों के गोकुल थे। मतलब इज एन इनकम मेकिंग प्रोसेस। हम तो इनकम मेकिंग प्रोसेस एक ही समझते हैं, 12,000 में नौकरी करते रहो, यही हमारा इनकम मेकिंग प्रोसेस हो गया है। और हम जो पढ़ाई करते हैं वो सारी बस नौकरी के लिए ही करते हैं, नौकरी और छोकरी के लिए पढ़ाई करते हैं, संस्कार संस्कृति के लिए कोई पढ़ाई नहीं है। फिर ये बताने के बाद हम गोकुल गांव ले जाते हैं, धौलेरा के पास, 150 एकड़ का पूरा खारा जमीन है, खारी जमीन, उसमें जो पानी किया है, एक भी बोर नहीं है, एक भी कुआं नहीं है, लेकिन बारिश के पानी के 5 एकड़ के तालाब के आधार पे आज वहां पे अच्छी गौशाला और अच्छा चारा उगाया है। सबको वहां ले जाते हैं, और वहां से फिर मणि लक्ष्मी तीर्थ में भोजन कराते हैं, वहां दर्शन कराते हैं, अद्भुत तीर्थ बना है मणि लक्ष्मी तीर्थ। बहुत खूबसूरत। धर्मज ले जाते हैं। धर्मज इज सस्टेनेबल मॉडल एंड इट इज अ मॉडल। ये मॉडल पूरे भारत के लिए देखनीय मॉडल है। अभी आदरणीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर्व कार्यवाहक माननीय भैयाजी जोशी को वहां पे लेके गया था 20 लोगों की टीम के साथ। धर्मज 1970 50 साल पहले गांव लोगों ने इकट्ठे होकर गांव की 142 एकड़ जमीन पूरी की, उस जमीन पे चारा उगाया। पानी कहाँ से लाए मालूम है? गांव का जो 10,000 लोगों की बस्ती है, उसका जो बाथरूम टॉयलेट का जो पानी था, 4.5 किलोमीटर तक पाइपलाइन से लाए। उसको खड्डे पद्धति से, एक खड्डे से दूसरे में फिल्टर करके उस पानी से पूरा चारा उगाया। वो चारा 50 साल से घर बैठे हर पशु को 10 किलो ग्राम पंचायत के माध्यम से मिलता है। गांव में 6,000 गौ माता पशुधन है, उसको चारा वो 142 एकड़ में से आता है घर पहुंच। 17,000 वृक्ष है वहां पे, आम, इमली और आंवले के। सालाना 50 लाख रुपया पेड़ों की आवक है, फल की पेड़ के फल। और मैं ये जो रिजॉर्ट की बात आप कर रहे हैं या डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, पूरे भारत के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने जो आत्मनिर्भर की बात की है, नरेंद्र भाई जब गुजरात के सीएम थे तब उन्होंने धर्मज मॉडल देखने के लिए पर तालुका 50,000 रुपया अलॉट किया था कि आप जाके धर्मज देख के आओ। तो ये धर्मज मॉडल का जो चारा है, उससे गांव में 14 नेशनलाइज बैंक है। और ये पहला गांव है जहां 50 साल से सरपंच का इलेक्शन नहीं हुआ है। यूनानिमसली डिसाइड होता है कि अभी आप सरपंच बनेंगे। गांव में क्राइम नहीं है, इसलिए पुलिस चौकी भी नहीं है उस गांव में, भारत का एकमात्र गांव है। आप वेबसाइट पे टाइप करके धर्मज तो, और गांव में हर व्यक्ति शांति से कमा रहा है। रोज का 6,000 लीटर दूध वो लोग डेयरी में भरते हैं। रोज की आज 40 रुपया भी गिनो तो 2.5 लाख रुपया इनकम है, कैश इनकम पर डे की धर्मज की। और वो फल की भी इनकम अलग है। तो मैं
ये 3 दिन के ट्रेनिंग में प्रैक्टिकली ये सब दिखाता हूँ, सब दिखाते हैं, राइट। इंटरेक्शन होता है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, मेरे लेक्चर्स होते हैं। उसके जी। माध्यम पे मैं ये चाहता हूँ पूरे भारत के हम्म सभी गांव के सरपंच हम्म, ये धर्मज मॉडल अपना ले, जी। तो इनको किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा, सरकार की कोई सहायता की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, और सरकार फिर इनकम टैक्स भी बंद कर देगी, क्योंकि सरकार को भी फिर बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट राइट। तो आपके साथ ये शिविर अगर किसी को ज्वाइन करना है तो किस किस माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं वो? हाँ बिल्कुल, मतलब अभी तो जैसे ये लॉकडाउन है तो सारा जी। वर्चुअली हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये कोरोना वगैरह थोड़ा कहर कम हो जाए तो 2020 तो निकालना ही पड़ेगा। राइट राइट। इसमें जब शिविर करेंगे तो आपके माध्यम से या हमारा समाज महाजन के माध्यम से सबको इन्फॉर्म करेंगे। राइट राइट। जिनको भी आना है, एनीवन मोस्ट वेलकम, जिसको एनिमल लव है, जिसको रूरल डेवलपमेंट का प्यार है, बिल्कुल। सब आ सकते हैं। और कुछ नहीं तो सीखने के लिए, देखने के लिए भी आ सकते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन। राइट राइट राइट। हाँ हाँ हाँ, बहुत कुछ सीखने मिलेगा 3 दिन में। बिल्कुल। हाँ हाँ, ये एक लर्निंग रहेगा कि बहुत कुछ मतलब देखने को मिलेगा। न्यू टेक्नोलॉजी है, किस तरह से गायों की सेवा हो रही है, किस तरीके से सब आप काम कर रहे हैं। तो आपकी पूरा आप बिलीव करते हैं लिव एंड लेट लिव, तो आप क्या अच्छा सा मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को? हाँ, मैं बिल्कुल ये मैसेज देना चाहूंगा कि सबसे पहले सब लोग ऑर्गेनिक अनाज ही खाए, ऑर्गेनिक शाक भाजी खाए, इसकी डिमांड शुरू करो। मैं ये नहीं कहूंगा आज भी वापस के चलो मुझे थोड़ा थोड़ा डोनेशन भेज दो, 2-2 हजार रुपए सब भेज दो। आपके दर्शकों को ये नहीं कहना है मुझे। राइट राइट राइट। मुझे ये कहना है कि आप लोग सब अपने अपने स्तर पे, जहां आप सिर्फ दुकान में जाके पूछो तो सही भाई ऑर्गेनिक अनाज है क्या, ऑर्गेनिक मूंग है, डिमांड रेज करोगे तो दुकान वाले को भी पता चलेगा भाई ऑर्गेनिक की डिमांड आ रही है, तो मुझे किसान को कहना पड़ेगा भाई तो ऑर्गेनिक बनाओ। हाँ हाँ हाँ, झूठा झूठा सर्टिफाइड ऑर्गेनिक नहीं, रियल टर्म्स में ऑर्गेनिक। ओके। आप ये बताऊं कि ऑर्गेनिक अनाज खाना मांगेंगे ना तो गाय बचेगी, तो पशु बचेगा। तो पूरे आपका जो यूथ है ऑफ उनको मैं यही कहूंगा, फर्स्ट स्टेप ऑर्गेनिक अनाज खाओ, ऑर्गेनिक सब्जी खाओ। सेकेंड स्टेप, जहां जहां भी जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स या व्हाटएवर, 50 प्रकार की चीजें हम गोबर और गोमूत्र में से बना रहे हैं। ओके। बाल का तेल हो, साबुन हो, हर चीज गोबर और गोमूत्र से सुपर क्वालिटी की बन रही है, सुपर क्वालिटी की, और इजीली अवेलेबल भी हो रही है। ओके, उसका उपयोग करो। आप राखी भी बांध रहे हो तो गोबर से राखी बन रही है। दिवाली आ रही है, दीवा लगाएंगे। अब वैसे भी चाइना से दीवा आना नहीं है और लाना भी नहीं है, कोई बात नहीं, तो गोबर से हमने दिए बनाए हैं। 11 करोड़ दिए बनाने का प्रोजेक्ट लिया है, 11 करोड़। पूरा पब्लिकली वायरल होगा, पब्लिकली मिलेगा। गोबर से बनाया हुआ दिया, 5 दिए का सेट 50 रुपए। आप उसका उपयोग चालू करो। तो वो कहाँ से ले सकते हैं पब्लिक? इजीली अवेलेबल होता जाएगा, अभी आपको उसके मैसेज वायरल होते जाएंगे। आज भी हमारी, मैं गांधीनगर था, आज हमारी उसकी मीटिंग भी थी, और बहुत इसको अच्छी तरह से पब्लिकली एक्सेप्टेंस मिल रहा है। कोई ना कोई गौशाला से ही नजदीक, क्योंकि पूरे भारत भर से लोग देखेंगे, तो कोई ना कोई गौशाला से ही आपको मिल जाएगा, नजदीक की गौशाला से। आप डिमांड तो करो, तो गौशाला वाला भी सोचेगा कि यार मेरे को इनको गोबर का दिया देना है, या गोबर की लकड़ी देनी है, या गोबर की कुंडी देना है झाड़ उगाने के लिए। 10-20-25 हजार के मशीन आते हैं, गौशाला वाला लगा लेगा। स्मशान में जलाना है मृतदेह को, तो क्यों लकड़ी जला रहे हो, गोबर की लकड़ी जलाओ जी। तवन में आता है ना, आखिर तो लाकड़ा ने छाना रे, एक्चुअली गोबर में जलने का ही प्रावधान है। राइट। तो ये सारी चीजें डिमांड करना शुरू करो। फिर कोई कहेगा कि मैं जो अभी मजबूत हूँ, तो आ जा भाई, तेरे गांव का डेवलपमेंट कर ले, डिजाइन हमसे ले ले, पैसा भी तेरा, काम भी तू ही कर। बिल्कुल। कोई कहेगा नहीं मैं कोई गौशाला चलाना चाहता हूँ, कोई बात नहीं, वेलकम, तुम्हारे एरिया की नजदीक की गौशाला देख लो, हम डिजाइन प्रोवाइड कर देंगे, गाइडेंस प्रोवाइड कर देंगे, आप अपने हाथ से ही करो। अपना हाथ जगन्नाथ, अपने गांव में अपनी सरकार। तो हमारा यूथ 5 प्रकार से, 5वां आंकड़ा है, 5 प्रकार से पशुधन को डायरेक्ट सपोर्ट कर सकता है।
गाय का दूध पिएगा, गाय का घी खाएगा, गोबर की सब चीजें यूज करेगा, गोबर की डिमांड करेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला ही अनाज खाएगा। राइट। इससे मिलके एक जागृति आएगी, एक जबरदस्त जन चेतना आएगी। वो अपने गांव का कल्चर डेवलप करे, अपने गांव का तालाब डेवलप करे, अपने गांव में देसी वृक्षों का वृक्षारोपण करे, और अपने गांव से एक भी पशु को कत्ल खाने जाने ही नहीं दे। तब जाके पशु बचेगा। पशु बचेगा तो ही देश बचेगा, तो ही विश्व बचेगा। किसी को मारने की भावना से देश भी नहीं बच सकता है, दुनिया भी नहीं बच सकती है। आज हम अनफॉर्चुनेटली फंसे हुए हैं। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि इस विश्व में 700 करोड़ की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो गई है। तो ये हम पढ़ते भी है कि भी किसी ने वायरस छोड़ा है, किसी ने ये किया है। तो क्यों ऐसी दुर्भावना रखनी है? हम क्यों सोचते कि कोई मर जाए? अरे जो जन्मता है वो अपना नसीब लेके जन्मता है। उसका पेट का विचार वो जन्मने से पहले कुदरत कर लेती है, भगवान कर लेता है। फिर वो होगा। आपको पता है बारिश का बूंद गिरता है, बराबर है, अनाज 3 महीने के बाद पकता है, 4 महीने के बाद पकता है, लेकिन 3 दिन के बाद आपको गौचर में, रोड के साइड में हरा हरा दिखने लगता है, चारा उगता है। सबसे पहले पशुओं के लिए चारा उगना शुरू हो जाता है। मनुष्य का अनाज 3 महीने के बाद पकता है। कुदरती ये व्यवस्था है। पानी गिरने के साथ सबसे पहले कुछ होगा तो पशु का होगा। पशु का होगा, बिल्कुल सही है। तो पूरे जो सारे जो समाज सेवी आपके साथ जुड़े हैं, मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप ये 5 पॉइंट्स याद रखिए। और फिर भी आपके मन की भावना हो जाए कि ये 5 में से कुछ नहीं हो रहा है, तो ठीक है, तो फिर आप दान धर्म भी बहुत बड़ा धर्म है, तो दान करिए अपनी शक्ति के मुजब। अपनी जो गौशाला नजदीक की हो, अपने समाज परिवार की हो या अपने परिचित की हो, कुछ नहीं मिले तो बाद में हमारे पास आना, तो हम रास्ता ढूंढ के निकाल के दे देंगे, भाई ये आपका पैसा ऐसे खर्च कर दो। जी, छोटा सा दान भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत। और ये सही है कि अभी देश में ये भावना जग रही कि स्वदेशी अपनाए। तो मुझे डेफिनेटली विश्वास है कि आप जो दीपक और बना रहे हैं, आप जो ऑर्गेनिक स्टफ बन रहा है अभी देश में, उसका डिमांड तो बढ़ेगा, ये विश्वास है, डिमांड बढ़ेगा। और डेफिनेटली हम भी इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे कि ये स्वदेशी सभी लोग अपनाएं। हम कर ही रहे हैं, स्वदेशी की भावना जगा ही रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट्स भी इस्तेमाल करना शुरू कर दे सभी लोग। तो थैंक यू सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा सारी जानकारी लेके, एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। बहुत धन्यवाद आपके सभी दर्शकों को। जय गौ माता, जय